हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ओके, सो द क्रेडिट गोes to Alfred Werner. He is considered as father of coordination chemistry. Now he suggested that if you talk about d elements, these d elements, when they are in ionic state, right, or in atom state, they have got two valencies. First is primary and the second is secondary. So if you find this, then it is in a compound, then it is definitely a coordination compound. Second पहचान क्या बताई, that there should be a box bracket. Okay, and inside this is coordination identity. Okay, whatever is written inside. Suppose I write, say, cobalt, here I write ammonia 6, and I write here 3 plus. Okay, so whatever is written inside is coordination entity. Right now we are going to discuss this in detail, लेकिन समझ लीजिए कि अगर coordination compound है तो box bracket ज़रूर होगा. Now generally बच्चे confuse कर जाते हैं और the question is asked, what is how do you know that it is not a double salt, or what is the difference between coordination compound and a double salt. तो double salt ले लेते हैं. जैसे हमने ले लिया KCl dot MgCl2, right, dot 6H2O. Now ये क्या है, ये हमारा डबल सॉल्ट है. ओके, और डबल सॉल्ट में व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, ये जितने भी सॉल्ट्स हैं, ये दोनों सॉल्ट, दे आर कनेक्टेड विद अ डॉट. दैट मीन्स वीक लिंकेज इज देयर. द मोमेंट यू पुट इट इन वाटर, right, they are going to break into KCl plus MgCl2 plus 6 water. Further, this will break into potassium ions, chloride ions, magnesium ions, right, chloride ions, like this is going to break. तो ये हो गया डबल सॉल्ट. ना अगर हमारा ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है एंड से यार ये चार्ज हटा देते हैं, आई राइट Cl3. ना अगर इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, ये जो बॉक्स है दिस विल रिमेन एज सच. सो यू विल गेट this hexaamine, right, cobalt, this will cobalt ion, this will remain as such, and you will get 3 chloride ions. So this is the difference, that this box will not break, this will remain as such, whereas if it is a double salt, it will break, dissolve and break into further ions. But here it will remain inside. So whatever is there in the entity will remain as such. Right, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं. ठीक है, एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज, जस्ट सेकेंड, सपोज हमने लिया कॉपर, राइट. सो दिस इज व्हाट, टेट्रा एक्वा कॉपर आइंस. नाउ जब भी हम कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं तो यू विल फाइंड उसके अंदर एक होगा central metal, right. Then you will have these, right, these are considered, so water over here is a ligand. This number is considered as coordination number, right. This is charge present on coordination sphere. Okay, so this is the labeling. Now central metal atom or ion क्या होगा, it will be definitely a D block element. ओके, जनरली 3D के ज़्यादा आपके पास कंपाउंड्स हैं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं लीगेंड में. तो व्हाट इज़ लीगेंड? सो लीगेंड क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली एन ion or a small molecule which has at least one lone pair, right. With this lone pair it forms a coordinate bond or additive bond. तो अगर आपका ये मेटल है तो लीगेंड से ऐसे lone pair, right, and coordinate bond, this is how it is linked. Okay, now when we talk about ligand, then ligand में एक term आती है denticity. So what do you mean by denticity? The number of ligating groups in a ligand. So denticity means number of ligating groups. Ligating groups means number of lone pairs, right. Now
ligand is always considered as Lewis base. Why it is considered as Lewis base? Because it is enriched or it is rich in lone pair. Now ligand can be neutral or it can be negative, right? If it is neutral, neutral में है तो अगर CO है तो आप इसको बोलेंगे कार्बोनिल, राइट? अगर NO है तो आप उसको बोलेंगे नाइट्रोसिल, राइट? अमीन AMM because it is derived from ammonia, so the name is amine. For water the name is aqua. ये आपको याद रखना पड़ेगा. Then जितने भी negative है like chloride है, hydroxide है, cyanide है या isocyanide है, right? या CNO है या NCO है, so they are all negative. So when we talk about negative ligands, तो जब हम नेम करेंगे, so you have to remember that they should end with O. तो हम क्या लिखेंगे? क्लोरिडो. Okay. Now when we talk about further ligands, तो ligands में क्या होता है? Denticity, number of ligands, ligating groups. तो अगर if there is one ligating group, we call this as mono. If there are two, then we call this as didentate. If there are many, then we call this as polydentate. Now एक है आपका ethane 1,2-diamine, इसको इथाइलिन डायमीन भी कहते हैं, right? So this ethane 1,2-diamine is written within parenthesis और इसमें नाइट्रोजन के ऊपर, दोनों नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ डाइडेंटेट लिगेंड. ओके, ऐसे ही पॉलीडेंटेट में आता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, राइट? नाउ इसमें क्या होता है? वही हमने ले लिया, CH2 ले लिया, CH2 ले लिया, NH2 इसी में ये दोनों हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगा दिया? एसीटेट ग्रुप. ओके, और यहाँ पे भी हमने लगा दिया 2 एसीटेट ग्रुप्स. सो टोटल हाउ मेनी एसीटेट ग्रुप्स? 4. सो द नेम इज टेट्रा एसीटेट. सेम, सो दिस इज इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, राइट? नाउ दिस इज अ पॉलीडेंटेट. नाउ एक और लीगेंड आता है जिसको हम बोलते हैं चीलेट लीगेंड. चीलेट लीगेंड में क्या होता है? व्हेन से अगर हमने ले लिया कॉपर है और हमने लगा दिया इथिलीन डायमीन, ये ले लिया. Okay, now this is what, this is actually giving 2 or more, right? तो कॉपर को अगर हम से 6 से कॉपर को हमने 2 से ले लिया, 2 इथिलीन डायमीन ले लिया, right? Okay, so what is happening? कॉपर को ये केज लाइक स्ट्रक्चर, सेंट्रल मेटल एटम केज लाइक स्ट्रक्चर में आ गया बिकॉज देर आर 2 लोन पेयर्स ऑन इथिलीन डायमीन एंड 2 हियर. इससे कॉपर को इन्होंने केज में कन्वर्ट कर दिया. तो दिस इज चीलेट लीगेंड. देन हम आ जाते हैं लीगेंड में एम्बीडेंटेट लीगेंड. कुछ लीगेंड्स ऐसे होते हैं कि आप उनको दोनों साइड से बॉन्ड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल नाइट्रो है. सो नाइट्रो में या तो मेटल के साथ नाइट्रोजन लिंक करेगा या मेटल के साथ ऑक्सीजन लिंक करेगा. सो अगर नाइट्रोजन लिंक करेगा तो हम बोलेंगे निट्रिटो, राइट, -N. एंड अगर ऑक्सीजन से होगा तो हम बोलेंगे नाइट्रिटो -O. ओके, सो दिस इज एम्बीडेंट. मतलब आप इसको दोनों तरफ से, मतलब इट कैन बी NO2, इट कैन बी ONO, राइट? देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. जितने भी होते हैं उनमें जब भी हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो जो पॉलीहेड्रन बनाता है, राइट, उसमें बेसिक जो कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं वो है ऑक्टाहीड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहीड्रल है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी है, राइट? लेकिन दिस इज नॉट वेरी कॉमन. ओके, सो द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन्स आर ऑक्टाहीड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहीड्रल, राइट? इन्हीं को हम फर्दर डिटेल्स में करेंगे. इसके बाद जब भी हम स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जब सेंट्रल मेटल एटम लेते हैं तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर नोट करेंगे. वो भी हम अभी कैलकुलेट करेंगे. एंड दैट ऑक्सीडेशन नंबर वी विल राइट इन रोमन न्यूमरल्स. ओके, इट विल बी फॉलोड. अभी हम करते हैं, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें आगे.
तो कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा वो या तो होमोलिप्टिक होगा या हेट्रोलिप्टिक होगा। होमो मतलब उसके जितने भी लीगेंड्स हैं वो सेम है, हेट्रोलिप्टिक मतलब उसके जो लीगेंड्स हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हियर कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कॉपर इज 4 और इसमें 4 अमोनिया ही है, सो देन इट इज होमोलिप्टिक। बट हियर सपोज 2 अमोनिया है एंड 2 वाटर है, एक्वा है, तो ये क्या होगा, हेट्रोलिप्टिक, बिकॉज द कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ग्रुप। ओके, नाउ अभी हम आपको जल्दी से पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता देते हैं। ओके, तो लेट्स टेक अनदर पेज, जस्ट अ सेकेंड। हम यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक, सपोज मुझे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर फॉर कॉम्प्लेक्स कॉपर अमोनिया, राइट, ये दिया हुआ है। अब मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? दिस आई विल कीप इट एज x plus what is the charge on ammonia? It is neutral, so 0. How many are there? 4, right, is equal to the total charge on the ion. So x plus 0 is equal to plus 2, or x is equal to plus 2. So this is the coordination number, this is the oxidation number for copper, and when we'll write the name, we'll write copper 2. ओके, एंड दिस शुड बी इन रोमन न्यूमरल्स। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमने लिया K4FeCN6। ओके, अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर आयरन। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, दिस विल ब्रेक, राइट, और नहीं भी ब्रेक करें तो भी हो जाएगा, बट ब्रेक कर लेते हैं। तो ये 4 है, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू हैव 4 unit charge, this is plus, so this will be minus, right? So x plus how many, 6, the Cn has got -1 charge, right, is equal to -4. So x minus 6 is equal to -4, or x is equal to -4 plus 6, or x is equal to plus 2. So here iron, right, ferrum, okay, we'll have 2, or we will write iron 2. Is this clear? So this is how we calculate the coordination number. चलिए अब वापस हम आ जाते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो IUPAC नोमेनक्लेचर में 2 पार्ट्स हैं, एक है जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, और एक जब है जब हम लिखते हैं नेम। ओके, सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर्मूला। तो ये रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले जब फॉर्मूला लिखते हैं तो एक कंपाउंड लिख लेते हैं। सपोज हमने ले लिया CONH3 होल 6, राइट, एंड से 3 प्लस चार्ज। तो सबसे पहले हमने देखा क्या लिखा है, हमने सबसे पहले लिखा है सेंट्रल मेटल। ओके, ना जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो इससे पहले आ जाते हैं, जब कंपाउंड लिखेंगे, जैसे हमने लिखा NaAgCN होल ट्वाइस, राइट। नाउ इसमें क्या है, ये क्या हो गया हमारा, वी ऑलवेज राइट केटाइन फर्स्ट फॉलोड बाय एनाइन। ओके, और जब हम कोऑर्डिनेशन के, अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला में हम नेम दे रहे हैं टू, फॉर्मूला दे रहे हैं फॉर द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सो कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब कहीं पे भी ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, या न्यूट्रल है, राइट। तो से NiCO होल 4, दिस इज न्यूट्रल। ओके, तो इन दिस केस सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट राइट दी सेंट्रल मेटल। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, सेंट्रल मेटल लिखा है सबसे पहले। आफ्टर दिस वी राइट द लीगेंड, और लीगेंड को कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो जैसे अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया को नेम कैसे करते हैं, अमीन, राइट। अभी अगर मैं 6 की जगह फॉर एग्जाम्पल आई टेक, इंटरेस्टिंग है बहुत, अगर सपोज मैंने ले लिया कोबाल्ट और मैंने ले लिया वाटर, ओके, तो क्या हो गया H2O, राइट। सपोज 2 ले लिया और ये अमोनिया ले लिया, ये ले लिया 4, ठीक है।
अब मैं आपको दो चॉइसेस दे रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि कौन सा ठीक है। ओके, बताइए विच वन इज करेक्ट। सो इसमें क्या है, आपने H पहले रखा क्योंकि नाइट्रोजन से पहले H आता है। नो, दिस इज इनकरेक्ट। द रीज़न इज हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उनके नेम से लेते हैं, लिगेंड्स के नेम पे। तो वाटर का नेम क्या है, एक्वा, और अमोनिया का नेम क्या है, अमीन, राइट ना। ये M कम्स बिफोर Q, सो इसलिए हमारा ये करेक्ट है। सो वी विल राइट द लिगेंड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, राइट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारा हिट्रोलिटिक है, हमने लिया कोबाल्ट, राइट, हमने लिया अमीन, हमने लिया सेमीन, हमने लिया से क्लोरीन। ओके, नाउ इज दिस करेक्ट? yes, this is correct. The reason is ये अमीन, right, this is bromido, this is chlorido, तो ये आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गया। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट द लिगेंड्स शुड बी अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है। देन अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, जैसे आपका लगा एथिलीन डायमीन इज देयर, इन दैट केस पॉलीडेंटेट लिगेंड को हम क्या करेंगे, पेरेंथेसिस में रखेंगे। ओके, राइट। और इसके बाहर जो भी नंबर होगा, ओके, सो दैट नंबर को जब हम नेम करेंगे तब हम ध्यान रखेंगे। इज दिस क्लियर? और अब ये इसको भी जब हम देखेंगे तो इसमें ये ई है, सो इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ से ले लेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जो लिगेंड्स हमारे पेरेंथेसिस में आ जाएंगे, इसके बाद कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर एक चार्ज होगा, राइट। सो ये आपको ध्यान रखना है कि दिस चार्ज अगर है तो वो आपके कैटायन या एनायन से बैलेंस्ड रहे। दैट मीन्स अगर मैंने लिखा K3FeCN6, राइट, अब आपने ये हटा दिया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आना चाहिए, 3-। सो रिमेंबर कि ये आपका चार्ज बैलेंस्ड है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट नेमिंग। जब हम नेम करते हैं तो ये रिवर्स हो गया, नेम जो है फॉर्मूले से रिवर्स है, बिकॉज वहाँ पे हमने क्या किया था, ये तो सेम है, कैटायन इज फॉलोड बाय एनायन, लेकिन वहाँ पे हमने पहले सेंट्रल मेटल एटम या आयन लिखा था। यहाँ हम सबसे पहले लिगेंड्स को लिखेंगे। ओके, ऑर्डर वही रहेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट, लेकिन लिगेंड्स जब हम लिखेंगे और कोई इसमें एनायनिक आएगा तो इट शुड एंड विद ओ। कैटायन सेम रहेगा और जो न्यूट्रल है उनके नाम हम याद रखेंगे। वाटर के लिए एक्वा यूज करेंगे, अमोनिया के लिए अमीन, CO फॉर कार्बोनिल, NO फॉर नाइट्रोसिल, ये आपको याद रखने हैं। और जितने लिगेंड्स हैं उनके साथ आप यूज करेंगे वर्ड मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ओके, तो सपोज अगर हमने लिखा है कॉपर, राइट, तो उसका नेम क्या हो जाएगा, राइट। सबसे पहले इसमें देखो, जब फॉर्मूला लिखा तो सेंट्रल मेटल एटम पहले लिखा, लिगेंड्स बाद में रखे, लेकिन जब हम नेम लिखेंगे तो नेम में हम इसको करेंगे, तो ये क्या है 4, सो वी विल राइट द नेम टेट्रा। ये कितना है, अमीन ना। इसमें बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, टेट्रा और अमीन में ये एक आ जाता है। नो, यू शुड राइट, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। काउंसिल इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्पेलिंग्स। देन अमीन में इट हैज़ टू बी डबल एम, तो ये डबल एम भी आपको ध्यान रखना। सो दिस इज टेट्रा अमीन। देन यू राइट कॉपर, देयर शुड बी नो स्पेस। कॉपर के बाद आप क्या रखेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, राइट, और फिर ये आ जाएगा आपका आयन ना। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, X+4 अमोनिया इज 0 इज इक्वल टू +2, और X+0 इज इक्वल टू +2 और X इज इक्वल टू +2, तो यहाँ क्या आ गया 2। इज दिस क्लियर? सो दिस इज टेट्रामीन कॉपर सेकेंड आयन। इज दिस क्लियर? दिस इज हाउ वी राइट नेम। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है हम निकाल रहे हैं वो कैसे रख रहे हैं,
वो हम रख रहे हैं इन रोमन न्यूमरल्स। ओके, देन आ जाता है, सपोज हमारा कंपाउंड है कॉपर, इथिलीन डायमीन और इथेन 1,2-डायमीन, और ये लिख दिया ना। इन दिस केस अगर ये हमारा ब्रैकेट में है, पेरेंथेसिस में लिखा है, इन दिस केस हम लीगेंड के साथ यूज करेंगे बिस। अगर 2 है तो बिस, ट्रिस फॉर 3, ट्रिट्राक्रिस फॉर 4। ओके, तो जितने भी लीगेंड्स पेरेंथेसिस के अंदर आएंगे उनके साथ बिस, ट्रिस, टेट्राक्रिस हम यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, जब हम सेंट्रल मेटल एटम और आयन लिखते हैं, अगर पॉजिटिव है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर वो नेगेटिव है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, इन दैट केस आप जो भी मेटल है उसके साथ आप वर्ड लगा देंगे 8 एज सफिक्स। ओके, राइट। एक जैसे हमने लिखा K3 FeCN होल 6, राइट। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? द नेम विल बी पोटेशियम, राइट। नाउ ये पहले आएगा, कितना है? हेक्सा सायानिडो, ओ याद रखना है नेगेटिव है। देन इट इज फेयर। नाउ अब ये क्या, ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये एंटिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव, तो ये आ जाएगा फेरेट। अब इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर देंगे, सो दिस विल बी x प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू -3, और x इज इक्वल टू -3 प्लस 6 और x इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा फेरेट 3। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया हमारा नेम, राइट। नाउ अब ये और भी इंटरेस्टिंग नेम है, ठीक है, इसको हम एक अलग से पेज लेते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर से हमने लिया Ag अमोनिया, राइट, AgCN. Now very simple, the first entity is cation and the second entity is anion, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब हम इसको कैटायन के जैसे नेम करेंगे, इसको हम एनायन के जैसे नेम करेंगे। अब ये कैटायन, ये एनायन है, ये ब्रेक कर जाएगा, तो ये प्लस चार्ज आ जाएगा और ये माइनस चार्ज आ जाएगा। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? x प्लस दिस इज 2 0 इज इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा x प्लस 2 minus 1 is equal to -1. So x plus 0 is equal to 1. Here it is 1. Here x minus 2 is equal to -1, or x is equal to -1 plus 2. So x is equal to 1. So in both the cases क्या आ रहा है? 1, right? अब हम इसको नेम करेंगे। पहले हम इसको करते हैं नेम, तो क्या आ जाएगा? डायमीन। So it will be diamine, right? Silver, okay. फिर ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डाइसायानिडो। देन दिस इज नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा? अर्जेंटेट, राइट, 8 लग गया 1। ओके, है ना इंटरेस्टिंग, राइट। ना इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम आ जाते हैं आइसोमेरिज्म पे। सो आइसोमेरिज्म मींस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सो इट इज क्लासिफाइड इनटू टू। यू हैव गॉट स्टीरियो आइसोमेरिज्म and you have got structural isomerism. Stereoisomerism is again classified as geometric and optical, and structure में हम पढ़ेंगे 4, that is linkage, coordination, ionization and solvate. ओके, अब हम आ जाते हैं ज्योमेट्रिक पे। सबसे पहले ज्योमेट्रिक अगर हम देखते हैं तो ज्योमेट्रिक विल बी सिस एंड ट्रांस। अगर हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म करेंगे तो क्या होगा? या तो वो सिस होगा या वो ट्रांस होगा। दैट मीन्स या तो फंक्शनल ग्रुप 2 है वो सेम साइड पर होंगे, या वो
ऑपोजिट साइड पर होंगे। तो जैसे अगर प्लेटिनम है, ओके, इन दिस केस अमीन्स जो है वो एक साइड पर है और क्लोरो ग्रुप on the other side. Here if you see, chloro groups are on opposite side, so this is trans, or amine groups are on opposite side, so this is right trans. Now we talk about optical. Optical में हमारे पास just a second, ऑप्टिकल में हमारे पास आ जाता है, ओके, यहाँ से आ जाते हैं ऑप्टिकल थोड़ा सा, यस। ना ऑप्टिकल में आने से पहले पहले हम ज्योमेट्रिक में, अभी तो ये 4 था तो बहुत ईजी है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर 4 नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर 4 नहीं है, अगर 6 है, इन दैट केस यही आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस की जगह बन जाएगा फेशियल एंड मेरिडियोनल। फेशियल में क्या होगा, जो तीनों ग्रुप्स होंगे वो एडजेसेंट होंगे, मतलब तीनों एक साथ, जब तीनों एक साथ आएंगे तो डेफिनेटली एक कॉर्नर पर ही आएगा। और मेरिडियोनल में क्या होगा कि दीज 3 आर नॉट टुगेदर, ओके। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल, जैसे ये हमारा है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट हैज़ गॉट 1 2 3 कंटिन्यूस। तो अगर आप 3 कंटिन्यूस देखते हैं तो इसमें क्या है, एक ये कॉर्नर पे आ गया, सो वन हैज़ टू बी, ये 2 कॉर्नर पे आ गए, राइट। तो किसी भी तरह से अगर ये फेशियल है तो 3 टुगेदर आएंगे, और अगर ये मेरिडियोनल है तो 3 कंटिन्यूस नहीं होंगे। तो मेरिडियोनल में जैसे सपोज 1 2 एंड 3 है, सो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, ओके, सो देन इट इज़ मेरिडियोनल। और अगर फेशियल है तो 3 कंटिन्यूस ग्रुप्स आएंगे। इज दिस क्लियर? तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिक में सिस ट्रांस एंड फेशियल एंड मेरिडियोनल। अब हम आ जाते हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में वी विल हैव एनेंशियोमर्स, दैट इज सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हो जाएंगे। ऑप्टिकल में 2 आएंगे, या तो वो डेक्स्ट्रो या वो लीव होगा, डेक्स्ट्रो है तो दूसरा उसका लीव होगा। सो व्हेन वी प्लेस द मॉलिक्यूल इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इट इज गोइंग टू शो डेक्स्ट्रो एंड लीवो, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। सपोज ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट में यहाँ पे से द स्ट्रक्चर says cobalt ethyl, this is tris, राइट, विथ 3+ चार्ज। तो सपोज ये हमारा मॉलिक्यूल है, ओके। अब आप सोचेंगे इसमें ऑप्टिकल कैसे होगा? ऑप्टिकल जो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा उसमें तो शुड बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ पे क्या है, हियर इट इज़ एन ऑप्टिकल आइसोमर बिकॉज इसमें आप एनेंशियोमर बना सकते हैं। देख लीजिए, इथाइलिन डाइमीन यहाँ पर आ गया, राइट, और इधर आ गया, ओके। सो इफ वन इज डेक्स्ट्रो द अदर वन विल बिकम लीवो। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल में हमारे पास 4 है। फर्स्ट आता है लिंकेज। लिंकेज जैसे हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था एम्बीडेंटेट लिगेंड के साथ। तो एम्बीडेंटेट जैसे नाइट्रोजन से लिंक होगा या ऑक्सीजन से लिंक होगा। सो सच आइसोमर्स आर एम्बीडेंट लिंकेजेस, लिंकेज आइसोमर, और लिगेंड की स्पेशलिटी होगी एम्बीडेंटेट लिगेंड, राइट। देन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट आइसोमेरिज्म। द नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, सेकेंड में इसमें क्या होता है, जो लिगेंड्स होते हैं दे एक्चुअली गेट लिगेंड्स, दे गेट एक्सचेंज्ड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ अमोनिया लगा है, क्रोमियम के साथ साइनाइड लगा है। सो व्हाट विल हैपन, क्रोमियम के साथ यहाँ पे अमोनिया आ जाएगा और कोबाल्ट के साथ साइनाइड आ जाएगा, ओके। सो दिस इज अ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देन थर्ड आ जाता है हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, व्हेन वी पुट एंड यू गेट डिफरेंट आयन्स। जैसे अगर आप इसको वाटर में पुट करेंगे तो यहाँ पे ब्रोमाइड मिलेगा, इसको पुट करेंगे तो यू विल गेट सल्फेट, राइट। तो जनरली इस पे क्वेश्चन आता है, जैसे आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला एंड यू गेट येलो कलर प्रेसिपिटेट, या आपने बेरियम क्लोराइड डाला, आपको वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ गया। तो उसका केमिकल टेस्ट के साथ दे आस्क यू टू आइडेंटिफाई विच आइसोमर, सो these are ionization isomers. लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम आते हैं सोलवेट और हाइड्रेट
isomerism. In solvent or hydrate isomerism, we actually take care of water. Okay, so the ligand water is there, that plays an important role. या तो वो inside coordination entity होगा या outside होगा. So for example, here water, 6 water are inside, and here 6 water में से 5 are inside and 1 is outside. Now always remember, जो सबसे important चीज़ है, that coordination number जो है वो आपका maintained है. प्लीज़ सी वो नहीं डिफर करे. तो क्रोमियम में यहाँ 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर क्रोमियम इज 6. हियर ऑल्सो 5 + 1 6. कहीं ऐसा ना हो आप अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करते वक्त ये चेंज करते हैं. ओके राइट. तो ये तो हो गए हमारा आइसोमेरिज्म. अब हम आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स दी. उन्होंने हाँ यस कुड नॉट एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स, बट उन्होंने बोला या तो आउटर ऑर्बिटल बनता है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है. तो उन्होंने बोला 2 तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, या तो आउटर या इनर. फिर उन्होंने बोला अगर आउटर है तो वो हाई स्पिन होता है, और अगर इनर है तो वो लो स्पिन होता है. इसकी शेप क्या होगी? शेप हो जाएगी ऑक्टाहीड्रल. लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बता पाई वाई हाई एंड वाई लो. कुड नॉट एक्सप्लेन वाई इट इज sp3d2 एंड d2sp3. यू नो वेरी इंटरेस्टिंग. एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा मैम दोनों में क्या फ़र्क है? तो ऐसे देखो क्या फ़र्क कह रहा है मैम, कुछ नहीं है, बस ये D2 यहाँ पे पीछे लगा है, यहाँ D2 आगे लगा है. बट बेटा D2 आगे लगा या पीछे लगा मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस. ओके, इसको हम आगे पढ़ेंगे इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ओके फिर उन्होंने बोला, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला कि अगर लिगेंड आपका वीक है तो वो अगर 4 है तो वो टेट्राहीड्रल ले लेगा, शेप sp3 बना हाइब्रिडाइजेशन होगा. और अगर लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है तो dsp2 ले लेगा. अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड लेगा. बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया वाई. उसने सिर्फ शेप बता दी, टेट्राहीड्रल, स्क्वायर, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, राइट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ओके, आउटर या इनर ऑर्बिटल, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन डिटेल. राइट, अब एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जैसे दैट अमोनिया इज़ अ वीक लिगेंड. ओके, लेकिन जब आप यूज़ करते हैं तो कहीं पे वो स्ट्रॉन्ग के जैसे एक्ट करता है, कहीं पे वो वीक के जैसे एक्ट करता है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ना ऑलवेज रिमेंबर, वीक लिगेंड कोई भी हो, एनी वीक लिगेंड, वो कब स्ट्रॉन्ग के जैसे एक्ट करेगा? जब उसके साथ वो जिस भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ अटैच होगा, अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंपाउंड ले लेते हैं हेक्सामीन कोबाल्ट, यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इट इज 6. राइट, सो अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट, और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं तो भी हाई है. राइट, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? D6 आ जाएगा, अभी हम पढ़ेंगे. तो बिकॉज ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे अमोनिया विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड. इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो आता ही आता है. ठीक है ना? अच्छा ओके, लेट्स टेक एग्जांपल, इसी को ही ले लेते हैं. तो फिर अगर हमारे पास दिस इज द कॉम्प्लेक्स, राइट, हेक्सामीन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स इज देयर. सो कोबाल्ट हैज गॉट एटॉमिक नंबर 27, वी राइट 2882, और ये डी में आ गए 7. ना अगर हम इसका चार्ज निकालते हैं तो कितना होगा? x + 6 = +3. राइट, तो ये क्या आया हमारा? ऑक्सीडेशन स्टेट +3. दैट मीन्स कोबाल्ट अगर +3 में होगा मतलब इट हैज़ लॉस्ट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3. तो 2 वो एस से लेगा और एक वो यहाँ से लेगा. राइट, सो क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट? ये हो जाएगी दिस 3d6 4s. ना ये चला गया 4s 0. ओके, नाउ ये हो गया हमारा 3d6. अब क्या आ रहा है? अमोनिया. नाउ व्हेन अमोनिया इज देयर, अमोनिया वैसे वीक है लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6. राइट, आयनिक रेडिया है स्मॉल. ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है हाई. तो अब अमोनिया एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग
और क्या होगा, ये बन जाएगा इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल में क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये दो शेल खाली हो जाएंगे। So you will have, so this will go for D2, यहाँ S, right, और ये 4p। so ये हो जाएगा हमारा D2sp3 hybridization which is going to lead to octahedral shape. ओके, नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हम लेते हैं हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट, राइट, कोबाल्टेट 3। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला 3। इसका नेम क्या लिखेंगे, नेम हम लिखेंगे हेक्सा फ्लोरिडो, वाई ओ बिकॉज ये नेगेटिव है। देन कोबाल्ट हाउ मच 3, लेकिन ये नेगेटिव है तो हम इसमें क्या लगाएंगे ATE8। ओके, अब समझ में आ गया कोबाल्टेट। नाउ फ्लोरिडो इज डेफिनेटली वीक लीकेन, इसलिए क्या बनेगा, ये एक आउटर और कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट मीन्स sp3d2 बनाएगा। तो कोबाल्ट में इसी में ही कर लेते हैं। अगर ये कोबाल्ट है तो +3 स्टेट में क्या है, 1 2 3 4 D6 है, राइट। और जब फ्लोरीन अप्रोच करेगा तो फ्लोरीन का लोन पेयर, राइट, आ जाएगा S पे। ओके, फिर आ जाएंगे 3 फ्लोरीन आ जाएंगे हमारे 3 पीस पे, और फिर आ जाएगा 5D2। ओके, तो ये टोटल कितना हो गया 6, राइट। एंड दिस इज हाउ हमारा ऑर्बिटल बन गया आउटर। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे यहाँ तो इनर बन गया, यहाँ आउटर बन गया, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन दिस, बस यही उसकी लिमिटेशन थी, राइट। ऐसे ही नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट निकिल, राइट। सो टेट्रा क्लोरिडो निकिलेट, राइट। अब इसमें भी वही है, सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी ये कंपाउंड्स दिए होते हैं हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, निकिल का कितना आ जाएगा, x + 4 - 1 = -2, राइट। तो x2 हो गया, राइट। इसका नेम क्या हो जाएगा, द नेम विल बी टेट्रा क्लोरिडो, राइट, निकिल। now this is negative, so nikilate, right, I, okay। अब इसमें निकल का एटॉमिक नंबर क्या है 28, सो वी विल राइट 2882, और डी में कितने आ जाएंगे 8। अब यहाँ पे हमने कितना निकाले 2, तो हमने ये निकाल दिया एस से, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ अब क्या होगा, इट इज गोइंग टू ईदर, या तो यहाँ का एक S और यहाँ के 3 पीस लेगा, क्योंकि 4 क्लोरीन, 1 2 3 4 पेयर्स ऑफ क्लोरीन, राइट। कहाँ आएंगे, एक S में आएगा और 3 P में आएंगे, सो इट विल गो फॉर sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहीड्रल होता है। नाउ ये वाला क्यों यूज़ किया, अंदर वाला DsP2 यूज़ क्यों नहीं किया, ये क्रिस्टल फ्लो थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। ओके, अभी इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्लोरिडो है, और अगर सेम अगर हम लेते हैं साइनिडो, तो साइनिडो में क्या हो जाएगा, साइनिडो में अगेन निकिल हमारा 28 है, तो D8 है, राइट, एंड 4s2 है, निकिल +2 स्टेट है, तो +2 स्टेट में ये चला गया, सो वी आर लेफ्ट विद D8, 1 2 3 4 5, let's take another color, 6 7 and 8।
जब साइड ओ आएगा, सो व्हाट विल हैपन, ये S4s है, ये 4p है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, राइट। सो दिस विल बी फ्री। से 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये खाली हो गया, यहाँ पर आ जाएगा साइनाइड साइनाइड साइनाइड, राइट, साइनाइड। तो ये क्या हो गया, DsP2। ओके, इज दिस क्लियर, राइट। बट बस ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया वाई sp3 एंड वाई DsP2। ओके, अगर DsP2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर आएगा, और sp3 होगा तो इट विल बी टेट्राहीड्रल। अब हम जाते हैं मेन थ्योरी विच इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दो एंटिटीज लेंगे, या तो ऑक्टाहेड्रल होगी या वो स्क्वायर प्लेनर होगी, ठीक है, या टेट्राहेड्रल होगी ना। हमारे कोर्स में ऑक्टाहेड्रल है, सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस एंड ऑन टेट्राहेड्रल, राइट, दोनों को करेंगे। सो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, 5D 5D 3D 4D, कोई भी D ले लेते हैं, सो दैट D हैज़ गॉट 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो जैसे ही लीगेंड, ये हो गया डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, राइट, जैसे ही लीगेंड अप्रोच करेगा पॉइंट चार्जेस के जैसे बिहेव करेंगे, एंड इट विल स्प्लिट, द सेंटर इज नोन एज बेरी सेंटर, राइट, इट विल स्प्लिट इनटू T2G एंड EG। T2G के अंदर आते हैं DXY DYZ एंड DZX ऑर्बिटल्स, राइट, एंड EG में आते हैं DZ² x² माइनस y²। ओके, नाउ ये 3 है तो डिफरेंस कितना आएगा, टोटल 5 है तो 2/5 हो जाएगा, और यहाँ डिफरेंस हो जाएगा 3/5, राइट। और ये हो जाएगी हमारी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल, राइट। दिस इज -0.4 एंड दिस इज +0.6, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। नाउ इन्होंने क्या किया, बेस्ड ऑन दिस उन्होंने कहा जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी फॉर ऑक्टाहेड्रल, इट विल डिपेंड अपॉन द फील्ड विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द लीगेंड। ओके, नाउ उसके लीगेंड के लिए वी नीड टू नो दी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी जिसमें अरेंज कर दिया स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स और वीक लीगेंड्स को। सो दिस इज द सीरीज, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए ना। ये तो आपके स्ट्रॉन्ग है, ये आपके वीक है, और ये फेंसिटर्स हैं। मतलब अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, स्मॉल आयनिक चार्ज है, ठीक है, आयनिक रेडियाई है, तो इसमें इन दैट केस दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज ये वीक है। ओके, फिर उन्होंने कहा एक पेयरिंग एनर्जी भी आ जाएगी। पेयरिंग एनर्जी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर्ड होंगे। सपोज अगर मान लो मेरे पास है T4 और वो भी है T2G में, तो मैंने लिख दिया 1 ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें कितना पेयर है, 1 पेयर। सो अकॉर्डिंग टू पेयर दे विल बी पेयरिंग एनर्जी। ना अगर crystal field energy for octahedral is less than pairing energy, तो क्या होगा, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, इट विल एंटर इनटू EG, ठीक है। दैट मीन्स अगर 1 2 3 1 2, राइट, ये ऐसे है, तो अगर ये कंडीशन है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर हमारे पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन है तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। ओके, एंड इफ देर इज रिवर्स कंडीशन दैट मीन्स octahedral energy is greater than pairing, then in that case pairing will take place, फोर्थ यहाँ नहीं जाएगा, फोर्थ यहाँ आ जाएगा। इज दिस क्लियर? सो अकॉर्डिंगली दे सेड अगर लिगेंड वीक है तो वो हाई स्पिन पे जाएगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये कंडीशन तब आएगी जब आपकी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जब आपकी पेयरिंग एनर्जी लेस होगी तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, लो स्पिन बनाएगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देगा। इज दिस क्लियर? नाउ ऑलवेज रिमेंबर D4 से D7 जितने भी होते हैं दे आर मोर स्टेबल फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए ये कंडीशन ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम को दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो
एवरेज एनर्जी ले ली हमने, स्प्लिट किया, ये हो गया हमारा बेरी सेंटर, ये हो गया हमारा 3/5, राइट। नाउ दिस इज व्हेन द केस इज टेट्राहीड्रल। नाउ टेट्राहीड्रल में देर इज नो सिमेट्री, नो सिमेट्री की वजह से यहाँ पे T2G की जगह हम इसको सिर्फ T2 बोलेंगे, EG की जगह हम इसको सिर्फ EG बोलेंगे, ये रिवर्स हो गया, राइट। तो ऑक्टाहीड्रल में EG ऊपर था और ऑक्टाहीड्रल में T2G नीचे था, लेकिन यहाँ ये डिफरेंट है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अगेन अकॉर्डिंगली ये चेंज हो गया, राइट। ये 3/5 हो गया, ये 2/5 हो गया। ओके, ना नेक्स्ट हम आ जाते हैं ना, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इज आस्क्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जो भी कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ D2D ट्रांजिशन। सो क्या होता है, सपोज वाइट लाइट है तो कॉम्प्लेक्स एक लाइट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होगा वो हमको रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड दैट विल बी ऑब्जर्व्ड। ओके, सो व्हाट हैपन्स, अगर आप ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, हमने लिया हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन, हमने ये ले लिया। अब इसमें क्या है, टाइटेनियम हैज़ गॉट एटॉमिक नंबर 22, सो 2882, और ये D2 में इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। व्हेन इट इज़ इन +3 स्टेट तो क्या हो गया, 2 S से गए और एक D से गया, तो 3D1 हो गया, राइट। तो इसमें कौन सी स्टेट है, स्टेट इज +3, तो 3D1 हो गया। सो दिस इज द 1 इलेक्ट्रॉन। ना जब हम इसको एनर्जी देते हैं, व्हेन वी गिव एनर्जी, सो इट विल शिफ्ट राइट टू EG1। सो वाइल एब्जॉर्बिंग, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वेवलेंथ अकॉर्डिंगली ये रिफ्लेक्ट करेगा कलर, सो दैट रिफ्लेक्टेड कलर विल बी ऑब्जॉर्ब, कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी फॉर एग्जांपल रूबी है, रूबी इज एक्चुअली एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके अंदर क्रोमियम आइंस प्रेजेंट है, क्रोमियम आइंस में D3 है और इसके अंदर जो D2D ट्रांजिशन हो रहा है उससे हमको रूबी रेड कलर का दिखता है। ओके, ऐसी एमराल्ड हमको कैसा दिखता है, एमराल्ड हमको ग्रीन दिखता है, बिकॉज एमराल्ड इज बेराइल, और यू कैन बेराइल या आप उसको बोल सकते हैं बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। इसके अंदर भी क्रोमियम है, लेकिन यहाँ पे क्रोमियम ऑक्टाहेड्रल साइड्स में प्रेजेंट है, राइट। और उसकी वजह से क्या होता है, अकॉर्डिंगली D2D ट्रांजिशन जो भी हो रहा है उससे हमको कलर ग्रीन दिखता है। ओके, नाउ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए वो दिए, वाई दे आर कलर्ड, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है और इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये एक्सप्लेन कर दिया। बट अगेन कुछ लिमिटेशंस थी विच वी डिड इट इन लीगेंड फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये इस पे फोकस नहीं करेंगे, वी विल जस्ट फोकस ऑन आवर सिलेबस पार्ट। अब हम आ जाते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का ये फॉर्मूला है। सो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी व्हेन वी टॉक फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो इट इज -0.4x + 0.6y, राइट। ऑक्टाहेड्रल field stabilization energy is denoted with triangle with O plus ZP, here Z is number of pairing electrons। ओके, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए ना, इस पे न्यूमेरिकल इस साल भी CBSE 12th के पेपर में आए हैं ना। सपोज अगर आपका D4 है, ऑक्टाहेड्रल है और लिखा हुआ है हाई स्पिन, हाई स्पिन का मतलब क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया, EG में गया। ओके, तो D4 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 T2G में है और एक EG में है। फॉर्मूला क्या है, -0.4, T2G में कितने, 3, सो वी मल्टीप्लाई दिस बाय 3 + 0.6, राइट, और यहाँ पे कितना है 1, सो वी मल्टीप्लाई दिस बाय 1। ओके, और ये हमारा आ गया -1.2 + 0.6, तो ये आ गई हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, ये हमारा इस बार का स्पेसिमेन जो सैंपल आया था काउंसिल का, उसमें भी था ये क्वेश्चन।
ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं, इंस्टेड ऑफ हाई देयर इज लो स्पिन। लो स्पिन होगा तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, इट विल गो इनटू दी T2G। तो सेम फॉर्मूला, -0.4 इंटू T2G प्लस 0.6 इंटू EG, राइट। यहाँ पे 4 है, सो वी मल्टीप्लाई बाय 4, वी मल्टीप्लाई बाय 0। अब आंसर आएगा -1.6। ओके, नेक्स्ट वी टेकअप, अगर हमारे पास D6 है और लो स्पिन है, राइट, और हम निकाल रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो जब हम स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालते हैं तब हम पेयरिंग भी ऐड करते हैं। सो स्टेबलाइजेशन एनर्जी में क्या हो जाएगा, दिस विल बी -0.6x प्लस 0.6y, राइट। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी प्लस ZP, नंबर ऑफ पेयर्स देखेंगे ना। दिस इज लो स्पिन। लो स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, T2G में। तो T2G में कितना है, 3 है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने पेयर्स हो गए, पेयर्स हो गए हमारे 3, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में डालेंगे, right, so this will be -0.4 into 6 plus 0.6 into 0, right, plus 3। इसको हम सॉल्व कर देंगे, so this will be -2.4 plus 0, right, so it will be -2.4 plus 3p। इसको हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं by 10, this will be 5, this will be 12, so we can write 12 by 5 minus plus 3p। ये आपका आंसर आ जाएगा ना। नेक्स्ट हम ले लेते हैं लो स्पिन की जगह हाई स्पिन। अगर हाई स्पिन होगा तो क्या होगा, हाई स्पिन के केस में क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चले जाएंगे, राइट। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो दिस विल फर्स्ट 5 पहले क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे, और सिक्स्थ वाला यहाँ आ जाएगा। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास, यहाँ पे x हो गया 4 और y हो गया हमारे 2, पेयरिंग में आ गया 1। ओके, सो व्हेन वी सॉल्व, जस्ट अ सेकेंड, व्हेन वी सॉल्व तो क्या आ जाएगा, -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 प्लस 2p। तो सॉल्व करेंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा, है ना इंटरेस्टिंग। सी, तो ये किसने बताया हमको, दिस वाज डिक्लेयर्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, नाउ लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चंस। एग्जांपल है कि अगर देयर इज 1 मोल ऑफ एन आइसोमर, राइट, इसको हम सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करते हैं एंड वी गेट ओनली 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड तो देख लेते हैं, अगर ये 3Cl है दैट मीन्स ये कितने देगा, 3 क्लोराइड्स देगा, और 3 क्लोराइड से 3 मोल्स ऑफ AgCl बन सकता है मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, 1, दैट मीन्स आउटसाइड, यहाँ पर सिंगल क्लोरीन होना चाहिए। तो आप ये ले लीजिए और इसके स्ट्रक्चर्स बना लीजिए, CrH2O6, राइट। Cl3 में आप चेंज कर लीजिए, बाहर एक Cl रख लीजिए, अंदर 2 Cl ले लीजिए। व्हेन यू पुट देम इनसाइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, तो वाटर हो जाएगा आपका 4, राइट। तो 2 वाटर बाहर आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल नाउ, अगर आपको करना है Cl2 क्रोमियम वाटर, राइट, और आपको करना है Cl1, बाहर रखना है Cl2, राइट, तो ये हो जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा 5, ओके, डॉट H2O। सो अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, हम इनको, अब इसमें से ये एक स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है। ना 1 मोल किससे बन रहा है, 1 मोल AgCl, 1 मोल AgCl बन रहा है, दैट मीन्स ये हमारा बच गया, ओके, क्योंकि एक क्लोरीन यूज हो गया, एक बच गया, तो ये हमारा सोलवेट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर D2sp3 है, सो दैट मीन्स वो क्या होगा, सो द लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, और ज्योमेट्री 2+3+1, तो कितनी है, 6 है, 6 है, तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल, ये है
अगर ये तो सेम ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट वी टेक अप द क्वेश्चन अगेन। अ कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मूला है राइट टेट्रा अमीन राइट डाई क्लोरिडो ओके एंड ब्रोमीन, ये सब दिया हुआ है ना, इसमें ब्रैकेट नहीं लिखा है राइट, सो यू डोंट नो वेदर ये एंटिटी में ये क्लोरीन अंदर है या ये क्लोरीन बाहर है, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। अब इसे जब आप सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करते हैं तो सॉल्युबल सॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, या तो विद ब्रोमाइड आउटसाइड या विद क्लोराइड आउटसाइड। तो टू फॉर्म्स आर देयर, फॉर्म ए फॉर्म बी। नाउ फॉर्म ए जो है वाइट प्रेसिपिटेट देता है, फॉर्म बी येलो देता है, दैट मीन्स ये फॉर्म बी है, फॉर्म ए है। ओके जस्ट सेकेंड स्लिप कर गया, ऊपर चला गया राइट। नाउ अब हमको क्या करना है, हमको इसका स्ट्रक्चर देना है, ये हमने दे दिया ओके। और नेक्स्ट आ जाता है हमको इसका हाइब्रिडाइजेशन देना है और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे +3 राइट। +3 कैसे आया, ओके ये अमोनिया ये 0 है, क्लोरीन 2 माइनस है, चार्ज यहाँ पे -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रोमाइड -1 है, तो X+3 आ गया राइट। नाउ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 25, तो ये +3 स्टेट है, +3 स्टेट मतलब अगर हम निकालेंगे D5 4s2 है तो 2 यहाँ से जाएंगे और 5 में से राइट एक चला जाएगा, सो यू विल हैव व्हाट, यहाँ पे सॉरी 1 होता है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 1 होता है राइट। तो 1 यहाँ से जाएगा और 2 यहाँ से जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3D3 राइट। तो अब यहाँ पे 3D3 है, दैट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3, तो इसका 3.87 बोहर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। इसका फॉर्मूला वही है √n n+2, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये yes I forgot, I must mention or clear this here that हमारा जो क्रोमियम है it is 25, so we write 2882 right, और ये D5 आ जाता है, ठीक है। सो सॉरी D4 होता है 24, यस, तो D4 है, तो D4 में क्या होता है, यहाँ पे D4 होगा, सो इट इज 288 and this is 2 and this is D4 24 ओके। नाउ 24 में क्या है, अब क्रोमियम का स्टेट आया +3। नाउ ये तो क्या है, ये हमारा थियोरेटिकल है। नाउ वी नो दैट हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, D5 इज मोर स्टेबल, तो D5 की वजह से क्या होगा, ये S से एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा, सो इट विल बी 3D5 4s1, ये क्रोमियम का एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड कन्फिगरेशन है, ठीक है। अब इसमें से अगर हम 3D3 करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 यहाँ से आएंगे, तो 3D3 बचेगा। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये हमने कर लिया, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, spin and magnetic value for this compound, okay. So this is MnCN whole 6 3 minus, so this is what, manganate right, hexacyanidोमैंगनीट, ओके। तो इसमें क्या है, लेट्स सी, एटॉमिक नंबर फॉर मैंगनीज इज 25, इसको लिखेंगे 3D5 4s2 ओके। इसका जो कोऑर्डिनेशन जो आएगा, वैल्यू ऑफ x विल बी 3, चार्ज, दैट मीन्स मैंगनीज कौन सी स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ओके। नाउ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट मीन्स इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो 2 फ्रॉम हेयर एंड 1 फ्रॉम हेयर, तो उसका स्टेट क्या आ जाएगा, 3D4 4s0 राइट। नाउ 3D4 4s0, सो व्हाट विल हैपन, इसमें 4 के 4 हमारे अनपेयर्ड है, तो ये क्या हो गया, 4 पैरामैग्नेटिक हो गया राइट। नाउ
अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ मैंगनीज को नहीं देख रहे, नाउ वी आर सीइंग विद रिस्पेक्ट टू साइनाइड। सो साइनाइड कैसा है हमारा, साइनाइडो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से क्या होगा, डेफिनेटली ये शिफ्ट हो जाएगा, D2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो हमारे पास ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। ओके, सो बोहर मैग्नेट्रॉन की टर्म्स में मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे √n n+2। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है, सो द वैल्यू विल बी दिस मच। नाउ बच्चे आप जो कंफ्यूज करते हैं वो ये करते हैं कि आपने पैरामैग्नेटिक यहाँ से निकाला, उसकी वैल्यू निकाल दी। नो, यू आर सीइंग फॉर अ कंपाउंड। अगर कंपाउंड के लिए देख रहे हैं तो आपको लिगेंड को भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 आयन। नाउ अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। कोबाल्ट इज 27, तो D7 हो गया, राइट। नाउ इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो कोबाल्ट की +3 है, दैट मीन्स 2 फ्रॉम हेयर एंड 1 फ्रॉम 7, दैट मीन्स स्टेट क्या हो जाएगी 3D6 4S0। ओके, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अमोनिया विल प्रोसीड। नाउ अमोनिया इज अ वीक लिगेंड, बट यहाँ पर इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 है, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा, और स्ट्रॉन्ग बिहेव करने की वजह से ये जो D2 है ये खाली हो जाएगा। हाउ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, सो विद द रिजल्ट हमारे पेयर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 पेयर्स हो जाएंगे, और ये स्पेस खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, 0। सो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, सो दैट विल बी 0 बोहर मैग्नेट्रॉन, राइट। इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम करते हैं, अगर हम ये ले लेते हैं से पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव टेकन, और फेरीसाइनाइड, लेट्स सी ये फेरी है या फेरो है। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, सो इट विल गिव 4 पोटेशियम आयंस एंड इट इज गोइंग टू गिव FeCN6 4 नेगेटिव चार्ज, राइट। नाउ अगर हम इसमें क्वेश्चन कहता है कि सपोज देर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आयरन के साथ डर्टी ग्रीन देगा, ठीक है। अगर फेरस होगा, अगर फेरिक होगा तो रेडिश ब्राउन देगा, या इसमें से देर विल बी नो टेस्ट या नो सच पीपीटी ऑब्जर्व्ड, ये क्वेश्चन है। ओके, तो अब क्या है, आयरन जो है, आयरन इस एंटिटी में इनक्लोज्ड है, राइट। तो न ये है, तो वैसे लेट्स सी कौन सी स्टेट है, चलो ये तो पढ़ ही लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x + 6 - 1 = -4, राइट। सो x = 2 आ जाएगा। सो दैट मीन्स है क्या, फेरस स्टेट है, राइट। लेकिन ये डर्टी ग्रीन नहीं देगा, वाई, बिकॉज इट इज नॉट फ्री, इट इज इनसाइड द एंटिटी, इसलिए ये टेस्ट नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। ऐसे ही देयर इज अनदर क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज K3FeCN6 कंपाउंड है, राइट। इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं एंड यू आर एक्सपेक्टेड कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बने, बट ऐसा नहीं होता है, वाई। So the reason is there will be 3 potassium ions and FeCN6 3-। In this case अगर आप निकालेंगे तो फेरिक स्टेट आएगी, बट इट इज नॉट फ्री। वो कहाँ पर है, बॉक्स में है, इसलिए इट विल नॉट गिव the brown precipitate test. So you have to justify, right? है ना interesting? So we have covered the entire coordination chemistry. अब इसके names writing के practice कर लीजिए, complexes के coordination, hybridization, charge, everything practice कर लीजिए, and this is very interesting. हर साल इस पे question आते हैं 5 marks के, और आप आराम से कर सकते हैं। Okay, all the best.